I'm in Jodhpur, known as the Blue City. Jodhpur is the second largest city of Rajasthan after its capital, Jaipur. The Jodhpur Lok Sabha constituency is among the 25 parliamentary seats in Rajasthan. It encompasses 8 assembly segments in the state. The constituency has a population of about 3.7 million. 34.3% of the population lives in urban areas, while 66.70% of the district is rural. Scheduled castes and scheduled tribes make up 17.8% and 13.5% of the population respectively. 87.45% are Hindu, 11.16% are Muslim, and 0.42% are Christian. 1.95 million people qualified to vote in the 2019 Lok Sabha polls, of which 68.89% turned up to vote. Jodhpur, the Blue City. The name is clearly befitting as most of the architecture, forts, palaces, temples, havelis, and even houses here are built in vivid shade of blue, set in the stark landscape of the Thar Desert. Jodhpur is inhabited inside the mammoth, imposing fortress of Mahendragarh with 8 gates leading out. Jodhpur marks its origin back to 1459 AD. The history of this city revolves around the Rathore clan. Rao Jodha, the chief of Rathore clan, is credited with the origin of Jodhpur. The city is known to be built in place of ancient capital, Mandor of the state of Manwar. Hence, the people of Jodhpur and surrounding areas are commonly known as Marwaris. The sitting MP here is Gajendra Singh Shekhawat, who won in 2019 by a margin of 20.39% of the vote. Congress Vaibhav Gehlot was the runner-up with 38.21% of the vote. This time, Congress has fielded Karan Singh Ucharda against Gajendra Singh Shekhawat, who remains undefeated since 2014. Gajendra Singh Shekhawat was born in 1967 in Jaisalmer. His rise in politics began as a philosophy postgraduate and MPhil from Jai Narayan Vyas University in Jodhpur. He started with the BJP student wing, ABVP. He won the university president election in 1992 with a record margin. He progressed to become the general secretary of the BJP's Kisan Morcha. Before entering politics, he was actively involved in the RSS and served as the general secretary of Seema Jan Kalyan Samiti. He secured his first parliamentary win in 2014. Defeating the Congress candidate with a record-breaking margin. He was later appointed Union Minister of State, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. In 2019, he reaffirmed his political prowess by defeating the then Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot's son, Vaibhav Gehlot. He currently serves as the Union Minister in the Ministry of Jal Shakti. Dressed in a crisp white kurta pajama, Gajendra Singh Shekhawat is ready to hit the road. We get the opportunity to speak to him before he kickstarts his campaigning for the day. एक नेता जिन्हें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान और भविष्य कहा जा रहा है, एक लीडर जिनको परफॉर्मर का टैग दिया गया है। आज ITV की इलेक्शन स्पेशल में हमारे साथ खास गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों का बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, अब वापस से जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा रण। हमने देखा पहली बार आप जब जीते तो उसके बाद दूसरी बार जीते, अब तीसरी बार की तैयारी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक डेडिकेशन लग रहा है। देखिए, देश भर के मतदाताओं ने 2014 में
श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में देखते हुए उनके पक्ष में मतदान किया था, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां देश में उससे पहले के 10 साल में थी, देश हर मोर्चे पर विफल हो गया था। आर्थिक, सामाजिक, सामरिक सभी मोर्चों पर देश पिछड़ रहा था और जनता को ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसको हमने बहुत बड़े संघर्ष, बलिदानों के बाद में हासिल किया, उस पर से विश्वास उठने लगा था। तब जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया और 5 साल में मोदी जी ने जिस तरह से काम किया, दूसरे 5 साल में देश की जनता ने मोदी जी के उस काम पर विश्वास करते हुए उनको एक बार फिर और बड़े अंतर के साथ में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। इस 10 साल के कालखंड के बाद में अब जब तीसरी बार चुनाव हो रहा है, तब देश की जनता 10 साल मोदी बनाम 10 साल यूपीए, इसकी तुलना कर रही है। और जब ये तुलना होती है तो वो तुलना में कहीं भी कोई तरह का साम्य नज़र नहीं आता। इस 10 साल में वो सब कुछ हुआ है, चाहे हम गरीब कल्याण के दृष्टिकोण से देखें, सामान्य मानवी के जीवन में आने वाली सुविधाओं के दृष्टिकोण से देखें, ईज़ ऑफ लिविंग के दृष्टिकोण से देखें, देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से देखें, हम फ्रेजाइल 5 से निकल करके टॉप 5 इकोनॉमी हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें, सब कुछ बदल गया। आज देश सहज रूप से इस बात पर विश्वास करता है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी के भरोसे ही देश आने वाले समय में विकसित हो सकता है। और अब की बार का चुनाव जो है, तीसरी बार जनता अब विकसित भारत, जिसका संकल्प देश की जनता ने माननीय मोदी जी के साथ किया है, उसकी आधारशिला रखने का ये चुनाव है, ऐसा मान करके चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट करेगी। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में चेहरे गौण हो गए हैं, प्रत्याशी गौण हो गए हैं। पूरे देश में एक ही प्रत्याशी है, वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का चेहरा। सर, क्योंकि अब आप जोधपुर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत टफ डे हो जाता है। हम लोग अभी कॉफ़ी पे चर्चा कर रहे हैं, लोग चाय पे करते हैं, हम कॉफ़ी पे कर रहे हैं। अब सब आपका एवरेज डे, मैं भी नहीं पीती सर, तो एवरेज डे की अगर हम बात करते हैं, कितने बजे आपकी शुरुआत हो जाती है? ऑन एन एवरेज कैसे आप मैनेज कर पाते हैं डाइट भी, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी है। मैं अभी आई हूँ उत्तराखंड से, तो बहुत गर्मी मुझे तो बहुत लग रही है सर। आप उत्तराखंड से आए इसलिए आपको गर्मी लग रही है और मैं जैसलमेर में जन्मा हूँ इसलिए मुझे गर्मी लगती नहीं है। देखिए, चुनाव न हो तो भी सामान्यतया जब मैं क्षेत्र में जोधपुर में होता हूँ तो मेरा दिन, चाहे मैं जोधपुर में हूँ, दिल्ली में हूँ, देश दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मेरा दिन सुबह 5:30-6 बजे के बीच में शुरू होता है। अपने सारे पूजा पाठ, स्नान ध्यान ये सब करने के बाद में, योग प्राणायाम करने के बाद में मैं लगभग 7-7:30 बजे के बीच शुरू करता हूँ। वहाँ से लेकर के दिन को समाप्त करने का कोई समय नहीं है और कभी तय नहीं था। कल रात्रि में भी मैं घर में 2:30 बजे पहुँचा था। और शायद अगर मैं पूरे 365 दिन का पिछले 10 साल का हिसाब करूं, या उससे पहले के 10 साल का जब मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता था, शायद ही कभी ऐसा दिन होगा कि मैं रात को 1 या 2 बजे से पहले घर पहुंचाऊंगा या सोया होऊंगा। जहाँ तक डाइट का विषय है, मैं तो बहुत संयमित भोजन करने वाला आदमी हूँ, दिन में एक ही समय भोजन करता हूँ। और गर्मी में रहने की आदत, क्योंकि डीएनए में है, यहीं पैदा हुए हैं, इसलिए गर्मी में रहने की तो आदत है। और गर्मी मुझे लगता है कि हम पश्चिमी राजस्थान के लोगों को सताती नहीं है, परेशान नहीं करती। ये हमारे स्वभाव में आई है और हम सब लोग गर्मी में बहुत अनुकूलता के साथ में काम कर पाते हैं। सर, सीमा जन कल्याण की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बीएसएफ के एक पोस्ट आपने देखे हुए हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप बीएसएफ और गांव के, क्योंकि उस टाइम इंटेलिजेंस इतना नहीं हुआ करता था, और आप बीएसएफ और गांव के लोगों के बीच की एक वो मेन कड़ी बने थे। उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि किस तरीके से, अगर हम सीमा कल्याण की बात करते हैं, सीमा जन कल्याण की, तो क्या कुछ था? देखिए, देश के बंटवारे के बाद में राजस्थान का ये भूभाग जो पाकिस्तान से लगता है और देश का पाकिस्तान के साथ में शेयर किए जाने वाली सीमा का लगभग 1/3 हिस्सा है। कोई नेचुरल लाइन ऑफ डिवीज़न न होने के चलते हुए और एकाएक 2 देश बंट गए, एक देश बंट करके 2 देश बने। पड़ोस का गांव, जिस गांव में एक व्यक्ति की ससुराल होगी, ननिहाल होगी, उसकी बहन वहाँ ब्याही होगी, वो एकाएक परदेसी हो गया। लेकिन आज़ादी के बाद में कई वर्षों तक, कहूँ कई दशकों तक, 65 की लड़ाई तक, क्योंकि कोई सीमा पर डिवीज़न लाइन नहीं थी, न कोई पोस्ट हुआ करती थी, न कोई सिक्योरिटी हुआ करती थी, न सेना थी, न सीमा सुरक्षा बल थी,
ये लोग बदस्तूर देश अलग अलग हो गए थे, लेकिन आते जाते रहते थे। उनके संपर्क संबंध उसी तरह से बने हुए थे, सभी जाति समाज के लोगों के बने हुए थे। लेकिन लड़ाई के बाद में 65-71 की लड़ाई के बाद में जब तनाव बढ़ने लगे, तो ये सीमावर्ती क्षेत्र की चुनौतियां भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे करते करते ये क्षेत्र जो है राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बन के रूप में उभरने लगे। मैं अपनी छात्र राजनीति के दौर से स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंटशिप का टेन्योर ख़त्म करके, और जैसा सामान्य सभी लोग कोशिश करते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने के लिए या डे टू डे पॉलिटिक्स में जाने के लिए, मेरे पास में भी उस समय इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, अयोध्या के ढांचा गिरने के बाद में सरकार गिरा दी गई थी जब हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, और छात्र संघ के अध्यक्ष के कार्यकाल में ही दूसरा चुनाव हो गया था। तो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी कि मैं देश के सीधे सीधे राजनीति के साथ में जुड़ूं। लेकिन मेरे मेंटर्स ने मुझसे ये अपेक्षा की कि मुझे सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करना चाहिए, और हमने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की जो दोहरी जिम्मेदारी सीमा का नागरिक होने के चलते है, हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो देश की सुरक्षा, रक्षा, देश की प्रगति, गति, इस पर चिंता करे, नज़र रखे। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की दोहरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उनको तैयार करना, उनको एहसास कराना, इस दृष्टिकोण से हमने 20 साल तक निरंतर मैंने उस संगठन के साथ में काम किया, और देश भर की सीमाओं पर उसके चलते हुए मुझे प्रवास करने का, काम करने का, जन जागरण का काम करने का, उनकी समस्याओं, मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का भी अवसर मिला। और उसके रास्ते से होकर के हमने देश की सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़े काम करने में सफलता प्राप्त की। मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूँ, ये जो पश्चिमी राजस्थान की सीमा है, ये देश की अन्य सीमाओं की तुलना में बहुत शांत भी है और सुरक्षित भी है। उसमें पूरा नहीं तो बहुत बड़ा योगदान सीमा जन कल्याण समिति की गतिविधियों का निश्चित रूप से है, और इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। सर, आपने बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने स्टूडेंट लीडर का भी बताया कि किस तरीके से आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप जाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे अपना पॉलिटिकल करियर करें। लेकिन उसी बीच अगर मैं आपको 30 साल पहले लेके जाना चाहूँ, तो जब यंग गजेंद्र सिंह शेखावत की हम बात करते हैं, तो आप अफ्रीका गए, वहाँ पे आपने खेती करनी शुरू कर दी। ऐसा क्यों, मतलब सडन चेंज क्यों स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और अफ्रीका में जाके खेती? ऐसा नहीं है, देखिए, पॉलिटिक्स में काम करते हुए या सीमा जन कल्याण समिति के साथ में काम करते हुए अल्टीमेटली आपको रोजगार करके अपने परिवार का पोषण, अपना सब कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने मुझे इसी तरह के संस्कार और प्रेरणा दिए कि आदमी को स्वरोजगारी बनना चाहिए। मैं घर का इकलौता बेटा था, बड़े घर का बेटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काम करने की प्रेरणा दी, और मैंने 13 साल की उम्र में मजदूर की तरह काम करना शुरू किया था। मैंने पढ़ाई के साथ साथ भी काम करना जारी रखा। पढ़ाई के बाद में भी मुझे दुनिया के लगभग 6-7 देशों में अलग अलग तरह के काम करने का सौभाग्य मिला। उसी क्रम में मुझे अफ्रीका में जाकर के खेती करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, और बहुत बड़ी स्केल पर हमने वहाँ फार्मिंग की। उस फार्मिंग कंपनी का अब मेरे पास में, मेरे परिवार के पास में कुछ स्टेक बचा है। हालांकि मैंने राजनीतिक क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से ज्वाइन जब 2014 में किया, उससे पहले मैंने अपने सारे तरह के बिजनेसेस, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम थे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम थे, खेती से रिलेटेड जो काम थे, वो सब से मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया। लेकिन वो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट अनुभव भी था, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसा अनुभव भी था। सर, साथ ही साथ क्योंकि हम आपके यंग गजेंद्र सिंह शेखावत की हम बात कर रहे हैं, तो सर आपको खेल का बहुत शौक है, मतलब अब उस टाइम में अभी भी है, क्योंकि खेल तो फिर कैसे टाइम निकालते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल नेशनल इंटरनेशनल आप रहे हैं, प्लेयर रहे हैं, बैडमिंटन की अगर हम बात करें वो भी, तो क्या टाइम मिल जाता है बिजी स्केड्यूल में? समय तो ख़त्म हो गया है। कोविड वॉज द लास्ट ऑफ टाइम, जब कुछ अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन के समय में मिली थी। दिल्ली में कुछ समय मिलता था, तब घर में ग्राउंड था, आदरणीय अर्जुन राम जी के घर में ग्राउंड था पास ही में, तो हम लोग शाम के समय में कुछ देर खेलते थे। वरना अब खेलने का क्रम तो छूट गया है, लगभग बंद हो गया है,
पिछले लगभग 10, 12, 13 साल से। लेकिन मुझे अभी भी वो सुनहरे दिन याद हैं। स्कूल में पढ़ते थे तब से लेकर के यूनिवर्सिटी से पास हुए तब तक निरंतर बिना किसी नागा के, बिना किसी व्यवधान के, शायद होली दिवाली 1-2 दिन छूटते होंगे, बाकी रोज़ शाम को वही समय पे ग्राउंड पे होना, रोज़ सुबह पे वही समय पे ग्राउंड पे होना। वो दौर निश्चित रूप से जीवन का सबसे अच्छा दौर था। सर, क्योंकि कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, सबके बॉसेस अच्छे होते हैं ये है, लेकिन प्रधानमंत्री एज ए बॉस कैसे है? और कोई ऐसा एक वाक्य, क्या कभी आपको डांट मिली है, कभी ऐसे मिलती है बॉसेस से डांट, कोई ऐसा वाक्य जो आप हमसे शेयर कर पाए कि प्रधानमंत्री को अगर कुछ कहना होता है तो किस अंदाज के साथ वो कहते हैं, एज ए बॉस कैसे है? कोई ऐसा आपको कोई एग्जाम्पल जब छोटी मोटी फटकार डांट मिली हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ में प्रत्यक्ष रूप से मुझे पिछले 10 साल से काम करने का अनुभव हुआ, और मैं ये मानता हूँ कि उनसे जब कभी भी उनसे मिलने का अवसर मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से अकेले में बैठकर बात करने का अवसर मिलता है, या सामूहिक रूप से किसी बैठक में छोटे टोली में बैठ कर के बात करने का अवसर मिलता है, हर बार उनकी वो भेंट कुछ न कुछ सिखा करके जाती है। प्रधानमंत्री एक तरफ ही इज़ ए ग्रेट लिसनर, और दूसरी तरफ किसी चीज़ को 360 डिग्री एवेल्युएट करके तुरंत आपको उसके दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करना। और निश्चित ही मैं एक ऐसे बॉस के साथ में काम करता हूं जो प्रैक्टिकली दिन में 24 घंटे काम करता है, और जब वो 24 घंटे काम करता है तो उसकी टीम को जो है उससे भी ज़्यादा काम करना होता है, ऐसी उनकी अपेक्षा होती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर विषय की बात करो, राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जिसको लेकर के अशोक गहलोत साहब बहुत राजनीति कर रहे थे, विश्वमन कर रहे थे, अनेक तरह के दोषारोपण कर रहे थे, मुझे कई तरह के आभूषणों से, शाब्दिक आभूषणों से अलंकृत कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के लिए भी कुछ बोल रहे थे। मैं एक दिन व्यथित मन होकर के प्रधानमंत्री जी के पास में गया, मैंने उनसे कहा कि इस तरह की परिस्थिति है। तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी भी बैरियर के साथ में रुकने की आवश्यकता नहीं है, नया सोचो जरूर मार्ग मिलेगा। और उन्होंने एकदम दृढ़ता के साथ में कहा, नया सोचो जरूर मार्ग मिलेगा। और वहाँ से हमने नए सिरे से सोचना शुरू किया, और जो नए सिरे से सोचा उसका परिणाम ये हुआ कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना और पुराना पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक जो ड्रॉप हो गया था, उन दोनों को इंटीग्रेट करके हम राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के, राजस्थान के पुराने 13 जिले जो अब 21 हो गए, और मध्य प्रदेश के गुना से लेकर के उज्जैन तक के 13 जिले, इन 26 जिले जो सूखे हैं, बिल्कुल सूखे हैं, उनके लिए लाइफलाइन बनाने का जो है हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। उनका वो एक दृढ़ता के साथ में कहा हुआ सेंटेंस, 7 करोड़ लोगों के प्यासे कंठों को प्यास तो बुझाएगा ही, अगले 50 साल तक लगभग 7.5 लाख एकड़ जमीन किसानों की सिंचित भी करेगा। एक बहुत बड़े सूखे भूभाग के जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। जब आपका लीडर इस दृष्टिकोण से सोचता है, तब आपको निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति भी होती है और काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। The minister has arrived at the party's main election office in Jodhpur. He offers prayers to goddess Durga at the temple installed inside the premises. He quickly glances through the day's schedule while meeting and greeting the local workers and volunteers who have gathered around him. He is presented with a traditional Rajasthani turban, a saffron scarf with Jai Shri Ram inscribed all over. It is a ritual practiced by the locals to show respect and offer best wishes before the task at hand. The first pit stop is the famous Mandalnath Mahadev temple. Here, he will be performing elaborate rituals offering prayers to Lord Shiva. He greets the temple priest and quickly changes into a dhoti and a gamcha, an attire suitable to perform the prayers. Lord Shiva is one of the most important gods in Hinduism and a member of the Holy Trinity with Brahma and Vishnu. He serves as the protector, the destroyer, and the creator. In Hinduism, the universe is thought to regenerate in cycles.
Shiva destroys the universe at the end of each cycle, which then allows for a new creation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा 400 पार। इस समय जोधपुर की अगर हम बात करें कि आखिर जोधपुर की क्या तैयारी है, तो हम मंडलनाथ में मौजूद हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत आए हैं। आज तक आपने नेताओं का वो रूप देखा होगा, लोगों के बीच में जाकर लोगों से उनकी दिक्कतें पूछने का, लेकिन आज वो यहाँ पर आए हैं मंडलनाथ में, बहुत ही पुराने शिव मंदिर में, जहाँ पर वो अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यानी तैयारियों के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करते हुए उन्होंने समस्याएं बताई और रोड मैप बताया कि किस तरीके से राजस्थान को या कहें लोगों को ये आगे जाकर या राजस्थान किस तरीके से विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूशन करेगा और तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं यहाँ पर वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन एक अनोखा रूप जो आपको यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत का देखने को मिल रहा है वो ये है कि आज वो खुद मंगलनाथ में आए हैं। यहाँ पर सबसे पुराना शिव मंदिर है, वो यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं, खुद यहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। यानी 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। हालांकि जोधपुर से वो 2 बार के जीते सांसद हैं, लेकिन अब जोधपुर की जो जनता है उनको निर्णय लेना है कि आखिर वो किसे जिताती है, क्योंकि रोड मैप तो हमने आप सभी को दिखाया कि किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिल्कुल क्योंकि वो जल शक्ति मंत्री रहे हैं। सबसे पहले 2014 में जब वो जीते थे तो कृषि मंत्री रहे, उसके बाद जल शक्ति मंत्री होने के बाद भी कई ऐसे आरोप लगे, लेकिन उन आरोपों का डटकर उन्होंने सामना किया। और उसके बाद राजस्थान की जनता और खास तौर पे अगर हम बात करते हैं जोधपुर की, तो ना ही बॉर्डर एरियाज जो जोधपुर से जुड़े हुए हैं उनके लिए काम किया, लेकिन अब एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से राजस्थान में जिस पानी की किल्लत के आरोप अभी तक लगते आए हैं भारतीय जनता पार्टी पे और खास करके गजेंद्र सिंह शेखावत पर, क्योंकि वो जल शक्ति मंत्री हैं, तो किस तरीके से वो लोगों तक अब पानी पहुंचाएंगे। With the sacred ashes representing Lord Shiva applied on his forehead, the minister completes the ritual. Time now for the Bhandara, where the devotees are offered prasad after the prayers are performed. Minister Shekhawat and his team also sit down for the meal. Before he leaves the temple, he is presented with a turban. He is only too happy to pose with the locals. We move on to our next stop. We have arrived in the Pal village. The minister is welcomed to beats of a drum and enthusiastic cheers of the locals. Once inside, he's seen interacting with the locals. As a mark of respect, the community head presents the Rajasthani turban to the minister. While the tent is filled with men, there are women and young children who have also gathered outside to get a glimpse of their leader. The women are dressed in their best finery, heads covered, as is the custom in Rajasthan. There are children spotted eating ice candies in the sweltering heat. While the minister carries on with his day's travels, we speak to some locals. 400 पार का नारा, क्या लग रहा है इस बार जीत पाएंगे, 400 पार कर पाएंगे, क्या मूड है? ये तो तयशुदा हो चुका है, 400 पार तो होना ही होना है। कार्यकर्ता ने मन बना लिया है, मोदी ने 400 पार का है। मोदी जी के जो सैनिक है वो 400 प्लस के पार ही जाके रुकेंगे। आपको क्या लगता है? 100% जिस तरह मोदी जी ने जो कहा वो किया। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था। जो राम भक्त है, जो धर्म को मानते हैं, जो राम को मानते हैं, वो सभी इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे, चाहे वो कहीं से भी होगा। 100% हम मोदी जी को इस बार 400 पार करवाएंगे। सर, इन्होंने कहा राम मंदिर, आपने बोला कि राम मंदिर बनवाया, तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई, तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा के जब इलेक्शंस आते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो दब जाते हैं? क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करते हैं और स्पेशली एरियाज़ कुछ हो गए, जैसे अलवर हो गया, अलवर से लगते कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ऑपोजिशन इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है कि पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। हालाँकि अगर हम जोधपुर की बात करते हैं तो जल शक्ति मंत्रालय जो है वो गजेंद्र जी के पास है, तो किस तरीके से आगते हैं आप ऐसे जो ऑपोजिशन रिएक्ट करता है? ऑपोजिशन रिएक्ट करता है। पिछले 5 साल सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने ईआरसीपी का क्यों नहीं लागू किया? केंद्र सरकार ने बार बार प्रपोजल भेजे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।
जैसे राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई और ERCP का हो गया है, MOU वगैरह सारा हो गया है। सरकार करना ही नहीं चाहती थी तो क्या करेंगे अब? तो आपको क्या लगता है कि अब अगर, चलिए मैं और भी यहाँ पे लोग हैं उनसे पूछती हूँ, मोदी की गारंटी के बारे में बात हो रही है, तो मोदी की कौन सी गारंटी इस बार जोधपुर को मिलनी चाहिए? मोदी की हर मामले में गारंटी है। जैसे जहाँ तक भाई पानी की बात कर रहे थे आप, तो जोधपुर से सांसद है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और 27,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अशोक गहलोत यहाँ पे कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे। हर मामले में अटकाना लटकाना ये चलता रहा, और आखिर अब डबल इंजन की जब सरकार आई है तो फिर अब वापस अब काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में इतना बोलते हैं, बीजेपी इतना बोलती है महिलाओं के बारे में, आपको क्या लगता है किसको जाना चाहिए? गजेंद्र सिंह को ही जाना चाहिए। गजेंद्र सिंह को जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं को भी बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत कुछ किया है उनके लिए भी, और जो महिलाएं हैं जिनको काम नहीं है उनके पास भी काफ़ी काम गया है, और उन्होंने भी बहुत कुछ किया है उनके लिए भी। आपको क्या लगता है किसको जाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? आप, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, प्रधानमंत्री इतना यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेके कि आप आइए मत दीजिए, तो किसको जाना चाहिए? पहला मत गजेंद्र सिंह शेखावत को ही है, क्योंकि हमने इतने टाइम से देखा है कि ये लोग इतना कर रहे हैं। हमारे टाइम पे मतलब जब हम वोट नहीं दे सकते थे तब से सुनते आ रहे हैं कि ये लोगों ने इतना कुछ किया है, इतना कर सकते हैं, राम मंदिर के लिए भी ये कुछ हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट वोट उन्हीं को होगा। In 2019, the BJP won all 25 Lok Sabha constituencies in Rajasthan. Gajendra Singh Shekhawat has been successful in winning Jodhpur for the last 3 terms. Can he keep his winning streak? Can Congress put up a tough fight, or will it be a lopsided contest? It will be interesting to see. That was the NewsX Road Stop in Jodhpur. Keep watching our non-stop ground series.